Good morning, student. In previous class, I had given a small introduction about accountancy, and today we are going to learn chapter 1, Introduction to Accounting, in which many topics are covered like meaning and definition of accounting, objective of accounting, functions of accounting, advantages of accounting, limitation of accounting, role of accounting in business, accounting process, branches of accounting, bookkeeping, accounting and accountancy, accounting information and its types, qualitative characteristics of accounting information, users of accounting information, systems of accounting. So many topics we are going to learn or we are going to understand in chapter 1, Introduction to Accounting. So first let us we start with meaning and definition of accounting. Accounting is just like a systematic process which helps in identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information to the users. It gives information on first the resources available, second how the available resources have been employed, and third the results achieved by their use. So simple. It is a process in which first we have to identify the transactions here, identify the transaction, identify the things. Then after that, measuring here, every transaction measured in respect of monetary terms. Recording, we have to record in the books of accounting. After that, we are classifying them. Classifying is a simple process which can be done with the help of ledger. Then summarized, we can summarize them with the help of trial balance. You will learn later. Then interpreting and communicating financial information. So at the end, what we are doing or what we have done at the end, what it shows the profit earned or loss incurred during the accounting period, value and nature of assets, liabilities and owners equity, that is capital. इट मीन्स जो हम प्रोसेस में करेंगे, जितना भी हम काम करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस में, तो एट द एंड व्हाट रिजल्ट वी आर गेटिंग, या तो हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हुई है, हमने जितना भी उससे अकाउंटिंग प्रोसेस को किया है सिस्टमेटिकली, उससे हमें दो चीज़ मिलेंगी. एक तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा. एक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड जैसे सपोज 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च होता है अकाउंटिंग पीरियड. इससे पहले कैलेंडर ईयर आप लोगों ने सुना था, कैलेंडर ईयर इज़ from 1st January to 31st December, that is called calendar year. But accounting year, okay, the books keeping of accounting, it is a period of 1st April to 31st March next year, that is called accounting year. And value of nature of assets, it shows value of nature of assets also, liabilities also, owners equity, that is capital. Assets or liability, I will explain you later what is it. Okay, since accounting is a medium of communication, it is called the language of business. Accounting is called the language of business because of accounting only we can know or we can understand about the financial position of business. And definitely the things which we are which shows through the accountancy, all things are in the monetary terms. Okay, that's why accountancy helps us to as a medium of communication. It is called the language of business. American Institutes of Certified Public Accountant gives a definition. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in a part at least of financial character and interpreting the result thereof. It means again, according to this institute, again it is accounting is the art of recording, classifying and summarizing. Okay, recording means first we have to make journal entries, then we have to classify the accounts with the help of ledger, then after that summarizing of account with the help of trial balance and significant manner in terms of money.
transaction and events which are in a part at least of financial character and interpreting the result thereof. Then again Smith and Ashburn given one more definition. It is a science of recording and classifying business transaction and events primarily of a financial character, and the art of making significant summaries, analysis and interpretations of those transactions and events, and communicating the results to persons who must make decisions or form judgment. One more definition which is given by American Accounting Association. Accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by user of the information. So student, in every definition one thing is common: identifying and measuring the transaction and recording and classifying and summarizing. Okay, so these things are common. It means पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उस ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, रिकॉर्ड किया जाता है. देन विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्डिंग हम उसका जर्नल एंट्री बनाते हैं. अभी आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में जर्नल एंट्री आपको समझ में नहीं आएगा. लेटर यू विल अंडरस्टैंड हाउ जर्नल एंट्रीज आर मेड. नाउ आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स. अकाउंटिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हम विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. So according to that there are many characteristics or attributes of accounting are given in your textbook. Now first characteristics: identification of financial transaction and events. It means first we have to identify the transaction whether it is record or not record. So when it is record, when it is economic transaction, it is related इन और इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. कोई भी ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड किया जाएगा बिजनेस में? जब ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, जब कोई ट्रांजेक्शन कैन बी क्रेडिट और कैन बी कैश. ट्रांजेक्शन कैश भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है. कैश होता तो डायरेक्टली इट इज़ लिंक्ड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट उधार भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उधार अपन ले रहे हैं, हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. डेफिनेटली वी मस्ट रिकॉर्ड इट, क्योंकि हमें फ्यूचर में तो उससे पैसा लेना है. आप अपनी शॉप पे जब भी जाते, किसी शॉप पे जाते हैं और सपोज इफ़ यू आर गेटिंग थिंग्स ऑन क्रेडिट, तो क्या होता है, वो शॉपकीपर आपका नाम लिखता है एक डायरी में और उसके आगे आपके पैसे लिख देता है. आजकल नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, अपन देखते हैं एप्लीकेशंस वगैरह, उसमें खाता बुक हैगा एक सॉफ्टवेयर. तो खाता बुक में ही स्मॉल ट्रेडर वगैरह क्या करते हैं, जिन भी कस्टमर वगैरह को माल बेचते हैं, अगर उधार बेचते हैं तो उसमें उसका नाम चढ़ा देते हैं, उसके अकाउंट पे कितना पैसा है वो लिख देते हैं. अल्टीमेटली वो इस ऐप के थ्रू उस कस्टमर को मैसेज भी कर देते हैं कि आपसे हमें कितने रुपए लेना देना है. तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर वो मॉनेटरी टर्म में मेज़र होता है बिजनेस का, तो वो रिकॉर्ड होगा आइदर इट इज़ कैश और क्रेडिट. सो स्टूडेंट, कैसे ट्रांजेक्शन जैसे रिकॉर्ड होते होंगे, जैसे सपोज बिजनेस परचेज रॉ मटेरियल और सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय फर्म. अगर कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा है या कोई एसेट्स खरीदी है या फिर फर्म ने कुछ माल बेचा है, उनका फिनिश गुड्स को सोल्ड किया है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस में क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं. ओके, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन. It means accounting measures the transaction and events in terms of common measurement unit. Common measurement unit, that is currency of the country. Currency of the country, अपने इंडिया की करेंसी मालूम है सबको. इंडिया की करेंसी काय में मेज़र होती है? इंडिया की करेंसी रुपीज़ में मेज़र होती है. ओके, in other words, financial transaction and events are measured in terms of money. We can say every transaction measured in terms of money. There is a note also. An event which cannot be measured in terms of money is not recorded in the books of accountancy. For example, event like the caliber or quality of management team or appointment of a manager are not recorded in the books of account. It means accountancy में
हम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं, हम किसी मैनेजर का अपॉइंटमेंट नहीं लिखते हैं, ओके। हम कोई मैनेजर कैसा काम करता है, कितना अच्छा काम करता है, वो सब अकाउंटिंग बुक में नहीं लिखते हैं। सिर्फ हम वही चीज़ें अकाउंटिंग बुक में लिखते हैं जो टर्म्स ऑफ मनी में मेज़र कर दी जाती है। थर्ड फीचर इज रिकॉर्डिंग। Recording is basically it is the art of recording business transaction in the books of account. Recording is the process of recording business transaction of financial characters in the book of original entry, that is journal. आप सबसे पहला न्यूमेरिकल का जो पार्टी आप लर्न करेंगे वो जर्नल करेंगे। दिस बुक इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक। ये जर्नल बुक भी क्या होता है, ये ओरिजिनल एंट्री होती है इसके अंदर, और ये बुक भी क्या होती है, सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड है। लाइक कैश जर्नल होता है, कैश बुक होता है, परचेस जर्नल होता है, परचेस बुक होता है, सेल्स जर्नल होता है, सेल्स बुक होता है, देन सेल्स रिटर्न होता है, परचेस रिटर्न होता है, ओके। सो देयर आर मेनी मोर बुक्स, ओके, विच आर सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट्स। देन फोर्थ इज क्लासीफाइंग कैसे होता है, ओके। अब हम ओरिजिनल एंट्री से तो हमने जर्नल बना लेते हैं, ठीक है। आप जर्नल जब सीखेंगे तो आपको समझ में आते भी जाएगा कि जर्नल कैसे बनता है। तो ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल जो ट्रांजेक्शन होता है, विद द हेल्प ऑफ द ट्रांजेक्शन वी कैन रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड जर्नल। देन आफ्टर दैट क्लासीफाइंग, ओके। जैसे सपोज करो जर्नल क्या हुआ, हमने एक सपोज एक एग्जांपल लिया, जर्नल में हमने राम से माल खरीदा, तो हमने एंट्री बना दी राम से माल खरीदा की, ठीक है। हमने राम को पेमेंट किया, हमने उसका भी एंट्री बना दिया राम को पेमेंट करने की, ठीक है। हमने राम से फिर वापस से माल खरीदा, फिर वापस उसका पेमेंट किया, ऐसे करके हमने महीने में राम से 5-7 बार ट्रांजैक्शन किया। तो ओरिजिनली अपन ने कितनी बार ट्रांजैक्शन करा राम से, 5-6 टाइम करा, तो अपने को 5-6 टाइम का एंट्री अपने को करना पड़ेगा। ओरिजिनल यही है ना, तो उस 5-6 बार की एंट्री क्या होगी, जर्नल बुक में होगी। अब एट द एंड ऑफ द मंथ हम ये देखना चाहते हैं कि हमें राम को कितना रुपए देना है, ठीक है, या हमने एट द एंड ऑफ द मंथ हमने उससे माल कितना खरीदा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ करने के लिए हमें अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। अगर माल खरीदा तो उसके लिए हमने परचेस किया था, उसके लिए परचेस अकाउंट खुलेगा। राम से माल खरीदा था, ठीक है, और अगर उधार खरीदा तो उसमें कौन सा अकाउंट खुल जाएगा, राम का अकाउंट खुल जाएगा। अगर उधार खरीदा होगा तो राम का अकाउंट अपन ने खोल दिया। अब जब राम का अकाउंट क्लासीफाई हो रहा है तो उसमें सिर्फ किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, राम से रिलेटेड। राम के अलावा कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं होगा, चाहे हमने राम को माल खरीदा हो, चाहे राम को बेचा हो, चाहे राम को अपन ने नगद पैसा दिया हो, चाहे अपन ने उधार माल लिया हो, जो भी चीज़ें राम से रिलेटेड होगी वो सब क्लासीफाई होकर कौन से अकाउंट में जाएगी, राम के अकाउंट में। इट मीन्स एट द एंड ऑफ द मंथ हम क्या कर सकते हैं, उस अकाउंट का, राम के अकाउंट का बैलेंस निकाल कर हम ये देख सकते हैं कि राम का अकाउंट बराबर है, या राम को हमें कुछ पैसे देना है, या राम से हमको कुछ पैसे वापस लेना है। ऐसे ही राम के अपोजिट परचेस अकाउंट चल रहा था, तो हम एट द एंड ऑफ द मंथ हम ये भी देख सकते हैं हमने राम के अलावा भी लोगों से माल खरीदा होगा, और यदि हमने परचेस अकाउंट बनाया तो हमने जितने लोगों से माल खरीदा होगा वो परचेस अकाउंट में लिखेंगे। और एट द एंड ऑफ द मंथ हम जब परचेस अकाउंट का टोटल करेंगे तो हमें ये पता पड़ेगा कि हमने कुल कितने रुपए का माल खरीदा। तो ये जो एट द एंड ऑफ द मंथ जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, ये क्लासीफाइंग सिस्टम के थ्रू कि एक अकाउंट जब क्लासीफाई हो जाता है तो उस अकाउंट के अंदर सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड होती है जो उससे रिलेटेड होती है। जैसे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन लिखाएंगे, ओनली कैश। अगर आपने उधार माल खरीदा होगा या उधार माल बेचा होगा तो उस कैश अकाउंट में नहीं लिखाएगा। तो दैट्स द थिंग विच कैन बी आइडेंटिफाई कि वो किस अकाउंट से बिलोंग करता है, किस अकाउंट से रिलेटेड है। देन दिस क्लासीफाइंग और क्लासीफाइड और पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट नोन एज द लेजर। मतलब हम जर्नल जो बनता है, जर्नल से हम क्या बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, ओके। दिस बुक कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन of a similar nature are collected. For example, in Rahul's account in the ledger, all business transactions related to Rahul are posted so that what is ultimately due to Rahul or due from Rahul can be ascertained. Point number 5.
समराइजिंग, फिफ्थ फीचर समराइजिंग। अब अपन ने क्लासीफाई कर लिया अकाउंट। अब क्लासीफाई करने के बाद में हमारे पास में नंबर ऑफ अकाउंट्स होते हैं बिजनेस में। अब नंबर ऑफ अकाउंट्स का इन्फॉर्मेशन हर अकाउंट लगभग 1 पेज, मोर देन 1 पेज, हाफ पेज इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं हर अकाउंट, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों में 2-2 पे 3-3 पेज कवर करेगा एक अकाउंट। तो अब हमें हमारे बिज़नेस की पोजीशन हमें देखनी होती है, या हमें हमारे बिज़नेस में हमने ये देखना है कि हमने राम से कितना माल ख़रीदा, शाम से कितना माल ख़रीदा, सुधीर को कितना माल बेचा, मोहन को कितना माल बेचा, टोटल कितना परचेस किया, टोटल कितना सेल्स किया, जनरल एक्सपेंसेस कितने थे हमारी बिल्डिंग कितने की रुपए की है हमारे पास कंप्यूटर फर्नीचर की क्या कीमत है। तो इतनी सारी चीज़ें अब हमें देखनी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वन बाय वन पेज पलटाएंगे और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। इसके लिए लेजर के बाद में क्या होता है, मैंने लेजर में आपको क्या बताया था, एट द एंड ऑफ द मंथ हमें बैलेंस मिल जाता है लेजर में। तो वो बैलेंस से हम क्या करते हैं, सारे अकाउंट्स को समराइज़ करते हैं, और उसको समराइज़ करने के बाद में उसको लेजर के बाद जो बनता है डेटा, क्लासिफाइड डेटा इन ए मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसको हम कहाँ पे समराइज़ करते हैं, एक स्टेटमेंट बनता है जिसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। हम सारे प्रोसेस को लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट समराइज़ करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। देन आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ अ कंपनीज। एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो आपने एक चीज़ स्टूडेंट, एक चीज़ आपने इस दौरान आपने ऑब्जर्व की होगी कि हम जो ओरिजिनल डेटा जो हमें मिलता है, हम उससे पहले क्या बनाते हैं, जर्नल को रिकॉर्ड करने के बाद में हम जब अकाउंट को क्लासीफाई करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट बनते हैं। देन हम उनसे समराइज़ करते हैं तो हम किसके हेल्प लेते हैं, ट्रायल बैलेंस की हेल्प लेते हैं। देन आफ्टर ट्रायल बैलेंस हम क्या करते हैं, हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद जब हमें बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानना हो तो हम क्या बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेडिंग एंड P&L एंड ट्रायल बैलेंस, what we are going to make, balance sheet of the company, balance sheet of the sole proprietor। बैलेंस शीट से हमें क्या पता पड़ता है, बैलेंस शीट से हमें हमारी फर्म की, हमारी कंपनी की पोजीशन पता पड़ती है, ठीक है। हमारी पोजीशन की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बोलते हैं हम, जो फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, वो हम बैलेंस शीट की हेल्प से हम जान सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड these statements are collectively known as final accounts और financial statement। जो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग बैलेंस शीट, ये सब है ना, they are collectively called final account और financial statements। सिक्स फीचर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद में these statement are used for the internal user as well as external users। इंटरनल यूजर खुद कंपनी है, खुद मैनेजमेंट है, खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। एक्सटर्नल यूजर जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, दोज आर शेयर होल्डर्स, दे आर एक्सटर्नल यूजर्स। सो what happened after final account, after making final account or financial statement, analysis and interpretation of the financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business। This helps in the planning for the future in a better way। तो जो बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट क्या करती है, हमें कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल पोजीशन बनाती है। अब जब हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल पोजीशन उस बैलेंस शीट से पता चलेगी तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, यह हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है हमारी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। हमें पता चल जाता है कि हमारे पास में रिजर्व कितने हैं, हमारे प्रॉफिट कितने हैं, हमारे पास में फंड्स कितने हैं, हमारे पास में असेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटी, हमें लोगों को उधार कितना देना है, हमारा बैंक का लोन कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता पड़ जाती है फाइनेंशियल पोजीशन से, जिससे कि हम जब एनालिसिस करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए प्लानिंग करना
फ्यूचर में हम बेटर वे में हम चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, हमारे गोल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं. लास्ट फीचर इज communicating. Finally, the accounting function involves communicating the financial data, financial statements to its users. The accounting information must be provided in time and presented to the user so that appropriate decisions may be taken at that right time. It means अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फंक्शनल डेटा. सारे फंक्शनल फाइनेंशियल डेटा को ही इन्वॉल्व करता है. और एंड दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूज़र्स. मैंने आपको पहले भी बताया, दो यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल यूज़र होता है और एक एक्सटर्नल यूज़र होता है. इंटरनल यूज़र खुद कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर, कंपनी के जो भी प्रेसिडेंट वगैरह, चेयरमैन, वट एवर हु एल्स आर देयर. ओके. और एक होते हैं एक्सटर्नल, जिसमें गवर्नमेंट होती है, जिसके अंदर आपके इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, ये सब एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं. द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम. इसीलिए क्या होता है, बैलेंस शीट जो बनती है एक किसी कंपनी की एवरी ईयर ऑन 31st मार्च. ओके. इट हैज़ टू बी मेड हर साल. तो एक अप्रोप्रिएट टाइम पर ये बन जाती, ताकि सही समय पर राइट टाइम पर इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में मिल जाए. और चाहे वो इंटरनल यूज़र हो, चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र हो, उस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले सकें. सो स्टूडेंट, इन टुडेज क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट definitions or meaning of accounting, in which we had discussed few definition which is given by American Institute of Certified Public Accountants. One more definition which is given by Smith, and one more definition which is given by American Accounting Association. And after that we have discussed characteristics also, in which first, identification of financial transaction and events. Second, measuring the identified transaction. Third, recording. Fourth, classifying. Fifth, summarizing. Sixth, analysis and interpretation. Seventh, communicating. So you all have to write down definition and characteristics in your notebook. Maybe if someone is not having a textbook, so I will share the pictures of meaning and definitions as well as characteristics of accounting on Campus Care app. So I hope you all will go through Campus Care app and you get this study material as well as this audio session also. Thank you so much.